प्लीज प्लीज. गाइस सभी को चांस मिलेगा, प्लीज. ओके. So Mr. Elvish Yadav is there. He would be captaining, as you all said, from the audience, Team Haryana. Yes, ascending from YouTube sensation to reality royalty, Elvish Yadav has become a force to be reckoned with Indian entertainment. His humor and captivating vlogs have amassed loyal following of over 14.3 million subscribers on his main YouTube channel alone. With a loyal following of with a combined following exceeding a staggering 22 million. Elvish's journey to stardom wasn't solely digital. He then went on to dominate the small screen, emerging victorious on the hit reality show Bigg Boss OTT, further cementing his place in the entertainment industry as a multi-talented star. From hilarious gaming streams to electrifying challenges, Elvish Yadav continues to dominate the digital landscape, leaving audiences wanting more. Whether it's acting, creating engaging content, or conquering reality TV, Elvish proves his versatility and star power. So guys, I would like to invite Mr. Elvish to speak a few words on ECL. Yes. और आप वहीं से भी बोल सकते हैं, whatever. Okay, great. हाय गाइस, थैंक यू सो मच जो आज मेरे को लाइफ में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली कि मेरी खुद की एक टीम है, प्लस मेरे खुद की स्टेट की टीम है. उसके मैंने बहुत सारे नाम सोचे थे, तो थोड़ा डिसेंट सा नाम रखा मैंने. इन्होंने जैसे बोला कि आई एम लीडिंग टीम हरियाणा, तो मैं उसका कैप्टन भी हूँ, ओनर भी हूँ, और उसका टीम का असली नाम है हरियाणवी हंटर्स. और उससे पहले हमने सोचा था कि इसका नाम रखेंगे हरियाणवी मॉन्स्टर्स, बट वो थोड़ा ना सूट नहीं कर रहा था, वो थोड़ा ज़्यादा रियल हो रहा था, तो हमको थोड़ा फिक्शन में जाना था, इसलिए हरियाणवी हंटर्स. तो थैंक यू सो मच भाई. और जितने भी लोग आ रखे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा छोटी सी कि क्वेश्चंस अच्छे अच्छे पूछना. और बहुत लोगों के फेसेस से मुझे पता लग रहा है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस लेके आए होगे आप लोग, तो उन चीज़ों को अवॉइड करना है. थैंक यू सो मच. आप सभी अपना फ़ोन नीचे रख के एक बार ज़ोरदार ताली बजाइए, बिकॉज सबके फ़ोन हाथ में है, ताली बजाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है. आई कैन अंडरस्टैंड दैट. सो नाउ वी हैव अनदर कैप्टन. मिस्टर सोनू शर्मा. सॉरी. ओके. Mr. Sharma is not your average speaker. He's a powerhouse, an author, educator, entrepreneur, and the youngest inspirational force India has ever seen. This rock star has penned life-changing books, empowered tens of thousands through his dynamic workshops, reached 1 billion viewers with his electrifying talks on YouTube, spanning an incredible 114 countries. Consulted for world-leading corporations like HP, SBI, Tata, and Bajaj. With over 750 events under his belt, Mr. Sharma has ignited the spark with top executives, government institutions, and countless individuals. He is a social media phenomenon with a combined following of over 17 million YouTube and Instagram. So guys, I would like to invite Mr. Sonu Sharma, and can you just guess his team? Any guesses? No. He would be representing, he's already here, guys. Can you give him a big round of applause? He would be captaining Team Delhi. Guys, एक बार और आप ताली में बहुत कंजूसी कर रहे हैं. I can see that. Yeah. छठी क्लास का पढ़ाकू सब बालक था.
I would like to request Mr. Sharma to come here and speak few powerful words on ECL. Thank you. गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी. बहुत बहुत शुक्रिया अनिल और पूरी टीम का यार. मतलब मुझे क्या किस दिशा में बात करनी है? ECL. अच्छा कुछ भी यार, अभी तो अपने को खुद भी नहीं पता कि क्या होने वाला है. मतलब अनिल ने अपने पिटारे में क्या क्या छुपा रखा है वो धीरे धीरे बता रहा है हमारे को. अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है कि ये एक माइलस्टोन लीग हो सकता है अगले कुछ 3, 4, 5 महीने के अंदर. जिस तरीके से अनिल इसको डिज़ाइन कर रहे हैं और अनिल के पार्टनर इसको डिज़ाइन कर रहे हैं और जिस तरीके का ये पूरा का पूरा ऑरा क्रिएट हो रहा है, आप सब लोग यहाँ पर हैं ही. आज की डेट में हम सबको पता है कि सोशल मीडिया अपने आप में एक बहुत बड़ा बॉम्ब है और ये फटेगा अगले 1 महीने 2 महीने के अंदर. तो इसकी रेडिएशन कहाँ कहाँ जाएंगी अभी तो हमें को भी नहीं पता, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको अपनी टाइप का एक बड़ा लीग बनाएं जहाँ पर सारे इन्फ्लुएंसर एक छत के नीचे आएँ और सब लोगों का पैशन है क्रिकेट खेलना. मौका मिल रहा है दोबारा से अपने पैशन को जीने का. देखते हैं कि कहाँ तक पहुँचती है कहानी. तो बहुत बहुत शुक्रिया यार. थैंक यू सो मच. आप सबका बहुत बहुत आभार. आप लोग आए, बहुत बहुत थैंक यू. थैंक यू सो मच यार. गॉड ब्लेस यू. So any guesses who would be the next team captain who will be coming here on the podium? Guess तो करिए, इतनी लाइव ऑडियंस बैठी है और सब आराम से बैठे हुए हैं. चाय पी है ना आप सभी लोगों ने? Okay. Any other guesses? I think some of the people have good guesses. Okay. So our next team captain is Munawar Farooqi. And any guesses which team he would be representing? Mumbai. With a combined following of 15 million on YouTube and Instagram, Munawar Farooqi has carved a path through humor and resilience and has become a name synonymous with thoughtful stand-up comedy in India. Rising from humble beginnings in Gujarat, his sharp wit and introspective observations on life have resonated with millions. His talents extend beyond stand-up with his captivating performances and introspective lyrics translating into hit songs like Khwaish and Dhando. Victories on reality shows like Lock Up and Big Boss further solidified his place in the spotlight, showcasing his versatility as a performer. So, let's see his slide now. Yeah. So I would like to invite Mr. Farooqi on stage. And in the meanwhile, you can see his slide too. That is there, he's coming. Sonu Sharma. शो पे मेरे फैंस अप होते मुश्किलों की धूप मेरा ढूंढी मैंने चाह पुट योर हैंड्स अप छोटे नहीं टैंट्रम्स शो दे बूट की तेरी हिम्मत जो चले तेरे पांव ये चीखने चीखते जैसे चीखने सीख पे हम चीखते भी नहीं तेरे जैसों पे चीख पे तू घसीट के तमाचा तेरे मारू चीख पे 4 उंगलियां छपेगी तू भी नाचेगा इस नजरे. Lock Up Season 1 का badass winner is Munawar Farooqi. ये चले सारे होके जीना मुकम्मल होगी राइडों पे हम ना पड़े के राइड नजरे चाहतों पे. Now I'd like to invite Mr. Munawar on stage here and speak a few words on ECL. हेलो गुड आफ्टरनून. कैसे हो सब लोग? ठीक है. थैंक यू सो मच. पहले तो ECL डेफिनेटली एक ऐसी चीज़ होने वाली है जिसको मैं कैसे ही बताऊँ. मतलब अब आपको जाहिर ही है क्या होने वाला है. तो डेफिनेटली क्रिकेट इंडिया में अगर हम बोलते हैं कि बॉलीवुड से इंडिया
हर चीज़ में बॉलीवुड है, तो सेम टाइम पे ना क्रिकेट के साथ भी हमें पता है कि दैट हम इंडिया में क्रिकेट को कितना प्यार करते हैं। और यहाँ पे मुझे पता है, यहाँ पे भी हाथ भी रेस करेंगे तो सब ने क्रिकेट खेला है गली में, हम सब ने क्रिकेट इतना खेला है, और जिन्होंने खेला नहीं उन्होंने इतना देखा है। तो हम लोग क्रिकेट से बहुत कनेक्टेड है। और मुझे बचपन से मैंने बहुत वक्त बर्बाद इसलिए बोलूँगा क्योंकि मैं क्रिकेटर नहीं बन पाया बट मैंने बहुत क्रिकेट को वक्त दिया है और मैंने बहुत क्रिकेट खेला है मैंने। बट मुझे फाइनली इतनी खुशी हो रही है कि अभी मैं क्रिकेट एक नेक्स्ट लेवल तक खेल पाऊंगा जहाँ पे लोग देख सके। और ECL ने जो एंटरटेनमेंट लीग ही है, जो अपने आप में मुझे लगता है कि एंटरटेनमेंट क्रिकेट ये सारा कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया होने वाला है। और बहुत एक्साइटेड हूँ कैप्टन्स वगैरह को भी देख कर मैं कि मज़ा आएगा। थैंक यू। Fukra Insan's talent are limited to viral pranks and social experiments. He's a rising music star too. His catchy tunes like the 21 million smash hit Big Life have garnered him a loyal fan base. Fukra Insan has belted out other hits like Tum Mere, Din Te Raat, Ranjha and Mere Yara, proving his musical versatility. Further solidifying his fame, Fukra Insan even made it to the finals of the hit reality show Bigg Boss, showcasing his personality and charisma to the national audience. He's a true multi-hyphenate, a social media sensation and a musical soul. So let's hear for Fukra Insan. Yeah. Thank you very much. And I would like to invite Mr. Abhishek on stage and say a few words on ECL. हेलो एवरीवन। सबसे पहले मेरे को बताया नहीं गया था मेरे को यहाँ के कुछ बोलना है बट जब ECL का फर्स्ट थॉट निकला था एंड हिमांशु भाई से मेरी बात हुई थी तो हिमांशु भाई ने बोला ऐसे यूट्यूबर्स का, सेलिब्रिटीज़ का, सब इन सब का क्रिकेट लीग बनाते हैं। तो मैंने बोला भाई क्यों नहीं, क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जो हम सब ने खेला है, इन सबको लगता है ना यार एक प्लेटफॉर्म मिल जाए। मतलब बचपन में तो हर इंसान उठता है और वो कहता है मैं क्रिकेटर बनूंगा, फिर धीरे धीरे उसकी प्रायोरिटीज़ चेंज होती रहती है क्योंकि पता चल जाता है कि कॉम्पिटिशन बहुत है। बट आई एम ग्लैड कि दिस इज़ फाइनली हैपनिंग। और ये हिमांशु भाई और अनिल भाई का सपना था कि ये करना ही करना है, और ये दोनों खुद भी बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं और मज़ा आएगा। कैप्टन्स यहाँ पर अपने दोस्त है एल्विश और मुनावर भाई को फर्स्ट टाइम में मिला यहाँ पर, तो इट्स इवेंटफुल, बहुत मज़ा आने वाला है सबके साथ खेलने में, सबकी टीम्स देखने में कैसा रहता है, कैसा होगा। एंड आई होप बहुत ही अच्छा और बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। So guys, we have the 4 captains, but 2 of the captains couldn't make it today. Another captain for the team is Harsh Beniwal. He's captaining Team Punjab. So I'll just tell you a few little introduction about him. He's from viral vines to Bollywood dreams. Harsh Beniwal has become a multifaceted entertainer in the Indian spotlight. With over 15.2 million loyal subscribers hanging on to his every comedic skit and social experiment, Beniwal's infectious humor and relatable characters have taken YouTube by storm. Being a web sensation is one chapter in his story. He also dipped his toes into acting by making his debut in the hit film Student of the Year 2. So I would like to show his slide. Yes.
कंटेंट आजा देखे मेरा कंटेंट मम्मी है फीमेल मेरे पापा है जेंट्स लगाता मैं डीओ ना लगाऊं कभी सैंड स्टाइल साडा देसी पापा रहंदे पूरे कैंट गड्डी मेरी ब्लैक ना पड़ता उसमें टैंट मैं ही सुपरमैन और मैं ही क्लार्क कैंट आजा देखे मेरा कंटेंट 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 Great. So lastly, but not the least, there's another captain, Mr. Anurag Dwivedi, and he would be captaining Team Lucknow. Anurag Dwivedi, a 23-year-old Lucknow, Uttar Pradesh, India has quickly risen to prominence as one of the country's most successful fantasy cricket analysts. Known for his precise predictions and inside previews, Anurag has captivated. Okay, maybe we can do it together. Yeah. So guys, we have a bite from both of these, so we would be playing after this. Anurag has captivated a substantial audience, amassing over 6.3 million on YouTube and Instagram. So let's hear for the slide and the bites of these two captains. छठी क्लास का पढ़ाकू सब बालक था, थी हंसती खेलती शरारती सी जिंदगी। आया एक दौर ऐसा जहां देखा पैसा मुझे सट्टेबाजी मैच में कमाई फ्री फंड की। कितना हारा जीता पैसे की तो बात ही नहीं थी, बस काम किया किस्मत मेरे हाथ में नहीं थी। कामयाबी धोखेबाजी दोनों साथ में चली थी, सब सह गया सोचा शुरुआत ही नहीं। Okay, now we would be playing the bites from these two captains. Guys, can we have the bites, please? I don't have. हेलो गाइस, तो अब मैं फैंटेसी क्रिकेट की दुनिया से हट के रियल क्रिकेट की दुनिया में भी आ रहा हूँ। जी हाँ, मैंने भी एंट्री ले ली अपनी एंटरटेनर्स क्रिकेट लीग में और मैं भी चुना गया हूँ एक कैप्टन के तौर पे। तो फैंटेसी क्रिकेट की दुनिया की जो जिम्मेदारी है उसको संभालते संभालते अब रियल क्रिकेट की दुनिया की जिम्मेदारी संभाल ली है। आई एम वेरी एक्साइटेड और अनफॉर्चुनेटली मैं आ नहीं पाया उसके टूर्नामेंट के लॉन्च इवेंट पे, क्योंकि मुझे गांव आना था और गांव आया हूँ मैं पूजा के लिए, और हमारे यहाँ भाई पूजा पाठ कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पहले से ही तय था तो मैं आ नहीं सका, उसके लिए सॉरी। बट यस, आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड और जल्दी ये टूर्नामेंट स्टार्ट हो और सबके सिस्टम हम हैंग करते हैं। Can we have the another bite? Yes. Hey guys, I'm really sorry यार मैं आ नहीं पाया क्योंकि मेरी वेब सीरीज का शूट चल रहा था, बट आई एम सो एक्साइटेड टू बी पार्ट ऑफ ECL एज अ कैप्टन ऑफ टीम पंजाब। तो गाइज बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत मज़ेदार होने वाला है, बहुत ही मज़ा आएगा अपने दोस्तों को हराने में। और इन सब की गेम तो देखी थी मैंने यार क्रिकेट खेलते हुए, इनको तो बहुत ईजी भी हो जाएगा मेरे लिए। तो गाइज मिलते हैं जल्दी फील्ड पे एंड लव यू गाइज। Okay, we are delighted to have such diverse group of media today. So I am opening the floor for questions, but please make sure do not ask anything personal. We would not be entertaining any personal questions today. Only the questions related with ECL. Yeah. Who would like to ask any questions? Yes. Hi, Mayur here from Beyond Bollywood. Congratulations to the founders and to all the captains. I just have a small 2 or 3 questions. Firstly, to the founders, there's a very saying, a horses for courses policy applies to, I think, any field. So this very idea of picking up social media stars, to represent this league. I mean, is it more appropriate to call it like a social media cricket league than an entertainers cricket league? And I mean, is it just like does it promote the sport? Cricket doesn't need to be promoted, to be honest, but I want to know your perspective. I think because we had some web series in the past which one of the OTT networks had roped in all the popular OTT stars, and I think that had its own journey and its own result. So I just wanted your thoughts firstly on this aspect.
Working? Yeah. So basically, coming to your first point, like where you mentioned why these guys, why we chose these guys. Basically, as everyone mentioned, like they love the sport, and most of them wanted to be cricketers themselves, and they play really good cricket, which we have seen. So that's the main perspective of getting all these creators who were like who wanted to be cricketers but lost the love because of too much of competition in our country. Like all of us sitting here, including both of us, we also wanted to be cricketers while growing up, but honi paya, and with the stage, with the audience which we have, and the audience also wants to see them play something, cricket or whatever. Like we have seen events where creators have played kabaddi and other sports. Also cricket has been there in multiple vlogs of Elvish, Abhishek and everywhere. So we have seen the love for the game with the audience, and that's the sole perspective of this getting these guys on board and doing the league. My question, like all four captains can say, social media obviously I think it's the most happening thing in the world today, and you guys are social media stars. और लेकिन कभी कभी ऐसे भी सुनने आता है कि ऐसा भी पर्सपेक्टिव है कि सोशल मीडिया की जो ज़िंदगी है वो सिर्फ 4 दिन की चांदनी है. तो इस चीज़ पे आप चारों कुछ कहना चाहेंगे, स्टार्टिंग विद मुनव्वर प्लीज़. जैसे बोलते 4 दिन की चांदनी है, वो तो सिर्फ सोशल मीडिया के लिए नहीं बोलते, हर चीज़ के लिए बोलते हैं. आप ज़्यादा खुश भी हो जाओ तो आपको जो खुश नहीं देखना चाहते वो यही बोलेंगे कि 4 दिन की चांदनी हो. जो आपको खुश देखना चाहते वो शायद ये ना कहें. एंड आई थिंक सोशल मीडिया पे वायरल होना और रेलेवेंट रहना 2 अलग अलग चीज़ें हैं. हमने बहुत सारे आने वाले 10-15 साल में देखा है कि कोई आँख मार के फेमस हुआ है, वायरल हुआ है, तो कोई एक उसके चिल्लाने के स्टाइल की वजह से फेमस हुआ है. अलग अलग डिफरेंट देखे, बट जब कोई भी एक वायरल होता है ना तो वो कुछ सच में आप जो कह रहे हो 4 दिन की चांदनी होती है. बट यहाँ पे हम लोग जो इतने साल से अगर कर रहे हैं या और अलग अलग डिफरेंट चीज़ें कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक आर्ट फॉर्म के थ्रू कर रहे हैं या टैलेंट के थ्रू कर रहे हैं कि सिर्फ हमको एक वो बोलते हैं ना कि झटके से बन नहीं गए या एक चीज़ लोगों को नहीं पसंद आ गई या कुछ. हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें करी है जिसकी वजह से लोगों ने पसंद किया है. और जितने भी सोशल मीडिया स्टार कहो या क्रिएटर्स कहो जो रोज़ डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते हैं या कुछ क्रिएट करते हैं, उनकी 4 दिन की चांदनी कभी नहीं होगी. जिन्होंने जो मेंटेन नहीं करते अपने आप को, जो मेहनत नहीं करते. क्योंकि फॉर एग्जांपल हम जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं क्रिएटर्स में, हमको टाइम हो गया. मैंने 2016 में स्टार्ट करा, अभिषेक ने मेरे हिसाब से उसी के आसपास कहीं स्टार्ट करा. तो हमने ग्रोथ देखी है धीरे धीरे, एकदम से नहीं कि एकदम से पीक आ गया. तो धीरे धीरे हम ऊपर चढ़ रहे हैं और भगवान ना करे कि कभी नीचे आए हम लोग, बट ऐसा होता नहीं, आएंगे. बट हमारी जो नीचे आएंगे वो भी धीरे धीरे ही होगा. तो 4 दिन की चांदनी सबके लिए वैलिड नहीं है, मेरे लिए तो है. देखो, हेलो, आपका नाम क्या है भैया? मयूर. मयूर. मयूर, ये मुहावरा तो अच्छा है यार, और ये बार बार याद दिलाते भी रहना चाहिए ताकि आदमी अपने पैरों पे खड़ा रहे. आई एम इनटू कॉर्पोरेट प्रोग्राम्स. आई एम वर्किंग विद 200+ कॉर्पोरेट ऑफिसेस, इंडिया टॉप मोस्ट ब्रांड्स. और कॉर्पोरेट में हमारा मैं एक लाइन बोलता हूँ कि इनकम विल नॉट फार एक्सीड योर पर्सनल डेवलपमेंट, सम टाइम इट टेक अ लकी जंप. कि आपकी कमाई कभी औकात से ऊपर आती नहीं है, कभी कभी तुक्के से ऊपर चली जाती है. अगर आप खुद पे काम नहीं करते तो वो लौट के वापस आ जाती है जहाँ से आपने शुरुआत की होती है. तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जैसे भाई बार बार याद दिलाते रहें कि भैया अगर ठीक से काम नहीं किया तो 4 दिन की चांदनी हो जाएगी. तो थैंक यू सो मच यार. और जो लोग ठीक से काम नहीं करते, अपने स्टैंडर्ड्स को हाई नहीं करते, उनके लिए 4 दिन की चांदनी होती ही है. लेकिन ये डायलॉग बार बार याद दिलाता रहता है उन लोगों के लिए जिनकी 4 दिन की चांदनी होगी है, ताकि उनसे सबक ले लें और बाकी लोगों के लिए 4 दिन की चांदनी ना हो. थैंक यू मयूर. वंडरफुल, वंडरफुल. हेलो. सो बेसिकली मेरा टेक इस पे कुछ ऐसा ही है कि लाइक इवेंट्स लाइक दिस जो ECL है, ये दिस काइंड ऑफ इवेंट्स हेल्प अस टू क्रिएट समथिंग डिफरेंट, लाइक एक डिफरेंट जॉनर ऑफ ऑडियंस को और रीच करने में हेल्प करती है. एंड मतलब इट्स लाइक सब कुछ आपके हार्डवर्क पे डिपेंड करता है. इफ़ यू आर जस्ट प्रेजेंटिंग एवरी टाइम सेम थिंग ऑन द टेबल, ऑब्वियसली अ टाइम विल कम व्हेन द ऑडियंस गेट्स बोर्ड एंड दे विल बी लाइक
बस भाई इसको मैं कितना देखूँ, 4 दिन के चांदनी, तब मेरे को लगता है वो वैलिड होता है. बट व्हेन यू कीप ऑन ट्राइंग न्यू स्टफ, आप नई नई चीज़ें ट्राई करते हो, नई नई ऑडियंस को रीच आउट करना चाहते हो. अब इट्स लाइक अगर हम बिग बॉस में गए, बिग बॉस के बाद हम इधर आए, ECL में आए, एंड ऐसे जब हम डिफरेंट चीज़ें हम करते रहते, तो आई फील एक लॉन्ग टर्म रेलिवेंसी और एक लॉन्ग टर्म लोगों को कुछ नया मिलता रहता है. तो आई एम वेरी थैंकफुल ये इवेंट के लिए भी, बिकॉज दीज काइंड ऑफ इवेंट्स हेल्प अस टू लाइक गेट न्यू ऑडियंस एंड टू ब्रिंग समथिंग न्यू फॉर आवर ऑडियंस. मतलब किसी ने हमारे अगर व्लॉग्स में देखा होगा, बट उन्होंने कभी कंपेटिटिव क्रिकेट खेलते हुए नहीं देखेगा हमें. तो जब ये मैचेस होंगे तो उसमें एक डिफरेंट साइड बाहर आना कि भाई अच्छा ये क्रिकेट भी खेलते हैं और क्रिकेट को लेके ये इतने पैशनेट है. तो जब आपको ऑडियंस एक पूरे उस रोल में भी देख लेती है ना कि अच्छा इसका ये साइड भी है, तो आई फील वो चीज़ें और हेल्प करती हैं. और बाकी अगर वो जैसे मुनावर भाई और एल्विश ने बात बोली कि वो जो एकदम स्पाइक ग्रोथ होती है, वो ऑब्वियसली वो कभी वो स्पाइक ही आता है लाइफ में, वो उसके बाद उसका डाउन ही आता है. और बट मुझे ऐसा लगता है जितने भी क्रिएटर्स यहाँ बैठे हैं, और सर मैंने इतने टाइम से इनको देखा है, सो सब ने अपनी ऑडियंस धीरे धीरे विद टाइम बिल्ड करी है. और इंडस्ट्री में 4 दिन से तो ज़्यादा सबको हो गए हैं. तो आई फील दैट्स हाउ इट इज. Great. So any other question? Yeah. हेलो सर, मेरा जो सवाल है वो मुनव्वर फारूकी से है, क्योंकि मुनव्वर फारूकी ने अपनी ज़िंदगी में जो स्ट्रगल किया है वो हमारे सामने है. बहुत बुरा दौर भी इन्होंने देखा कि किस तरीके से लोगों ने नज़रअंदाज किया. तो मैं मुनव्वर फारूकी से सवाल करना चाहता हूँ कि अब ज़िंदगी के जिस प्लेटफार्म पे आप खड़े हैं, पीछे मुड़कर देखते हैं तो कैसा लगता है, और आप युवाओं को क्या कुछ ऐसा कहना चाहेंगे कि वो भी आगे बढ़ें? वो हिसाब से मुझे लगता है वो हिसाब से मेरी 5वीं 6ठी चांदनी रात चल रही है. तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली जब ये दिमाग में रखते हैं कि जब हम लोग वो वक्त से गुजर रहे थे, वो पता नहीं था, अभी पता चल रहा है कि अरे वो वक्त बुरा था. उस वक्त में भी कंफर्टेबल थे बिकॉज लगता था यही ज़िंदगी है. बट हार्ड वर्क कभी नहीं रुका, उसकी जिम्मेदारियाँ इंसानों पे होती है. बट वही बोलते कि नसीब और अमल जो अपने एक्शंस है ना, मुझे लगता है कि यार मेहनत सभी करते हो, आपने कुछ कम नहीं देखा होगा. यहाँ पे बैठे सब लोग ने कुछ ना कुछ देखा होगा. बट आई बिलीव ये थोड़ी हार्ड वर्क से थोड़ी अलग चीज़ बोलने जा रहा हूँ मैं, कि हार्ड वर्क तो डेफिनेटली वहाँ है, नसीब बहुत काम करता है, आपका लक भी बहुत काम करता है, लेकिन साथ साथ में आपके जो एक्शंस हैं ना, आपके अमल, वो बहुत इंपॉर्टेंस है कि आप अपने आसपास के लोगों को कैसे ट्रीट करते हो, आप आसपास के लोगों के साथ बिहेवियर कैसा है आपका, या आप क्या करते हो चीज़ें. तो ये सारे एक्शंस जो है ना, वो आपको एक इंसान बनाते हैं. वो इंसान अगर आप बन गए ना, तो आप हर चीज़ में सेटिस्फाइड होना भी सीख जाओगे, और आप हर चीज़ को अचीव करने के जो गोल है, जो मेहनत है, उसमें भी फोकस हो जाओगे. तो मुझे लगता है कि मेरी जो जर्नी रही है, अगर लोगों को उससे इंस्पायर होना है तो बहुत अच्छी बात है. बट मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, काम करते रहो, नसीब तुम्हारे भी काम करेंगे, प्रे करते रहो, और जो अमल है, आपके एक्शंस है, वो बेटर कर लो बस. Great. हाय मुनव्वर, विशाल. मुनव्वर, आपके नाम के पीछे द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम सचिन तेंदुलकर जी का विकेट है. सो वो कितना कॉन्फिडेंस देगा आपको ECL में, अगर आप बताना चाहो. देखो, डेफिनेटली ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है. बट यहाँ पे कोई भी कमज़ोर नहीं है, सारे खिलाड़ी सब अपने आप में बहुत अच्छे हैं. एल्विश की मैं बात करूँ तो ऐसी एक एल्विश के नाम पे भी अचीवमेंट है. हाँ, एल्विश ने भी मेरा विकेट लिया था. यस. बट एल्विश के नाम पे एक और अचीवमेंट है, सबसे ज़्यादा गेंदे फेंकने का उस दिन. हाँ, नहीं, उसने बोला था, उसका इंजरी था, बट फिर भी उसने बॉलिंग किया था. बट यही है कि अचीवमेंट जो है, वो बोलते ना, अभी जैसे मैंने कहा, उनके आंसर में जवाब दिया कि हार्ड वर्किंग इज़ देयर, है मेहनत, बट नसीब ना. सचिन का विकेट लेने के लिए हार्ड वर्क की ज़रूरत नहीं है. तुम चाहे कुछ भी कर लो, सचिन का विकेट ऐसी सुबह उठ के जाके नहीं ले सकते हो. तो मैंने जब सचिन तेंदुलकर सर को आउट किया, तो मुझे पता था कि ये मेरे नसीब है. मेरा स्किल नहीं था उधर. तो नसीब भी काम करता है. और रही बात क्रिकेट की, तो बस एक और ट्रॉफी डोंगरी जा रही है. क्या बात है. अभिषेक जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा, आप बैंगलोर टीम के कैप्टन हो, राइट? यस यस. और IPL में कभी बैंगलोर टीम जीती नहीं है. वुमेन्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मेंस की बात कर रहा हूँ. तो कितना प्रेशर बन जाता है जब बैंगलोर टीम के कैप्टन. सॉरी विशाल, IPL में RCB नहीं जीती है, बैंगलोर नहीं जीती है, अंडरस्टैंड.
वैसे इसको भी रनर अप रहने की आदत है. So अभिषेक, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? मुझे ऐसा लगता है कि ECL में वोटिंग नहीं है तो इस बार हम जीत ही जाएंगे. क्या बात है. थैंक यू. Yeah, hi. My question is to all the captains of the team. How much they have prepared themselves physically and mentally for this cricket league and the team also? कितना आपने प्रिपरेशन किया हुआ है? आई फील मेंटली तो हम सारे प्रिपेयर्ड है बट फिजिकली अभी हम प्रिपेयर्ड नहीं है. थोड़ा अभी सोशल मीडिया की लाइफ में हमें ऐसा लगता है कि एक्टिविटीज़ हम बहुत कम करते हैं. तो अभी जब से क्रिकेट खेलना चालू करा है मुझे ऐसा लगता है रोज़ सुबह नए शरीर में किसी अंग में नए दर्द होती है. तो फिजिकली अभी प्रिपेयर होना मुझे लगता है 2 महीने लगेंगे हमारे को प्रिपेयर होने में. राइट. एक्टिविटीज़ और लाइफस्टाइल वैसे हो जाता है कि रात में लेट तक, मेरा तो राइटिंग वाइज वाला काम है तो दिन में तो नहीं कभी लिख पाता, शाम में लिखता हूँ, रात में लेट तक चलता है. तो फिज़िकली नहीं इतने फिट के क्रिकेट वैसा वाला खेले, बट येस हम लोग इनफ जिंदा बाहर आ सकते हैं मैदान से. उतने फिजिकली फिट है. और रही बात मेंटली फिट की, तो मेंटली तो बहुत फिट है. देखो मेंटली तो कौन ही फिट रहता आजकल. टॉक फॉर योरसेल्फ ब्रो. फिजिकली तो है, मेंटली में अभी थोड़ा टाइम है. उसके बाद जब हो जाएंगे फिर खेलेंगे, तो उस हिसाब से मैं रखवाऊंगा ये डेट्स. हाय, दिस इज़ मेघना हियर फ्रॉम बॉलीवुड हेल्पलाइन. मेरा सवाल आप चारों कैप्टन से है कि अपने बिजी शेड्यूल में से खुद की फिटनेस के लिए कैसे ध्यान देते हैं, क्योंकि क्रिकेट इज इक्वल टू फिटनेस एंड इंटरनेशनल योगा डे भी आ रहा है. तो गाइज यू वांट टू शेयर समथिंग? फुकरे के घर में तो जिम है, मेरे को पता है. इसने तो घर में जिम, स्विमिंग पूल सब बना के रखा है. मैं फिटनेस पे आजकल काफ़ी ध्यान दे रहा हूँ रात तक, क्योंकि दिन में मैं जिम जाता हूँ, फिर पूल जाता हूँ, स्टीम करता हूँ घर में. उसके बाद रात को हिमांशु भाई मेरे को पिज़्ज़ा खिलाने लेके चले जाते हैं, तो वहाँ मेरा फिटनेस थोड़ा लैक हो जाता है. नहीं तो मैं काफ़ी फिट हूँ, मुझे ऐसा लगता है. बट सबको फिट रहना चाहिए. नहीं, मैं अभी शर्ट टाइट करूँगा तो फट जाएगी, तो मैं फ्लेक्स नहीं करना चाहूँगा. फिटनेस का ऐसा सीन है कि भगवान की दया से सब चीज़ ठीक है. मैं पहले जिम जाता था तो उन्होंने कमर में दिक्कत कर दी, तो अब जिम मैंने छोड़ दी. क्रिकेट में खेलता हूँ रात को, तो उसी से बैलेंस हो जाता है मेरा काम का लोड और स्ट्रेस जो निकालता हूँ मैं उधर. चलो, एक कैप्टन का कमर का इशू पता चल गया. बाउंसर नहीं खेल पाएगा. चलो, तो फिजिकली मैं बोलूँगा मैं उतना फिट हूँ कि मैं पूरा दिन क्रिकेट खेल सकता हूँ. लाइक आदत रही है, ये रही है, और ट्रैवल भी आदत रही है. वॉक करने का मेरा रोज़ का वॉकिंग शेड्यूल बहुत अच्छा है कि मैं अच्छा खासा वॉक कर लेता हूँ. तो मुझे लगता है कि मैं उतना फिट हूँ कि मैं पूरा दिन क्रिकेट खेल सकता हूँ. थैंक यू मैम. हम लोग इतने फिट हैं कि हमने कॉस्को की बॉल से रखा है इसीलिए, और वो ग्राउंड भी बहुत छोटा है कि बॉल जाए तो हम भाग के उठा सकें. उस लेवल की फिटनेस तो है, उतनी बहुत है ना. Okay, guys, any other question? Yeah, hi, this is Samira from Telegram. मुनव्वर, आपसे और एल्विश से ये जानना चाहेंगे, आप लोगों ने पहले भी ECL खेला है. जब आप दोनों में भले ही कंपटीशन नहीं है या आप दोनों में रिवेंज नहीं आप लोग लेते हो, बट आपके फैंस ट्विटर पर इस तरह से एक दूसरे को लेकर रिवेंज लेते हैं. इस बार क्या कहना चाहूँगी, एक वीडियो लीक हुआ था, आई विल नॉट से कि लीक हुआ था, वो आपने खुद ने ही शूट किया था, और वहाँ से एल्विश आ रहे थे, आपसे हाथ मिला रहे थे, तो आपके फैंस बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए थे एल्विश इस चीज़ को लेकर कि आप आके मुनव्वर से हाथ मिला रहे हो. अब ये फैंस के रिवेंज पर आप दोनों क्या कहना चाहोगे? क्या एल्विश आप दोनों के बाद फुकरा इंसान भी आने वाले हैं इसी चीज़ में? Guys, can we move on from this question, please? This is not about related to ECL only, because not related to the ECL because this is the first season. Of the ECL. This is the first season of ECL. So your question is... Yes, but I'm talking about fans. But that's... I believe के फैंस जो है प्यार करते हैं अपने कंटेंट क्रिएटर्स हो, उनके स्टार्स हो, कोई भी स्टार हो, जैसे भी हो, फैंस प्यार करते हैं. और फैंस के बीच में कंपटीशन चलता है, वो एक बहुत क्लियर चीज़ है. हम खान्स को देख ले, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, उनके फैंस भी आपस में कभी कभी भिड़ जाते हैं. अक्षय कुमार के फैंस भिड़ जाते हैं. ये तो कहीं ना कहीं ये एक हम एज अ जनता भी ना, इंडियन टीम ही देख लो आप, अगर IPL भी होता है
तो एक मुंबई इंडियंस आरसीबी के जो फैंस हैं वो आपस में लड़ते हैं, राइट? और फिर साथ में रोहित शर्मा एंड कोहली ओपन कर रहे हैं। तो इस तरह की एक जब कंपटीशन होता है तो दोनों साइड से एक फैंस का थोड़ा बहुत रहता है, चलता है। बट ठीक है, टाइम के साथ चीज़ें बेहतर होती है एंड लाइक वी आर हियर टू फॉर पीस। लाइक हम उन्हें भी यही कहेंगे कि यार और हम चाहते हैं कि प्यार बांटो आप। अच्छी लैंग्वेज कंपटीशन बहुत ज़रूरी है, और कंपटीशन है तो क्या है। एल्विश, आप आपके फैंस को क्या कहना चाहो? मैं मेरे फैंस को नहीं, मैं आप लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि पॉजिटिविटी बांटो, सिर्फ पॉजिटिव रहो। तो नेगेटिव करते ही नहीं है, आप ही की तरफ से सब। मुझे आजकल दिखना बंद हो गया नेगेटिव ना, सिर्फ पॉजिटिव दिखता है। देखो अभी दिख नहीं रहे आप। First starting with Munawar ji. Next would be Mr. Elvish Yadav. Yeah. Everybody has taken the pictures? Okay. Mr. Sonu Sharma. Next, Mr. Abhishek.